یہ وائس آف امریکہ ہے اور پاکستان کے اندر عام انتخابات 2024 پہ خصوصی الیکشن بلیٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ پاکستان میں آج قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے رات 11 بجے ابتدائی نتائج کا اعلان کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس وقت جب پاکستان میں رات کا 1 بج چکا ہے، زیادہ تر حلقوں میں پولنگ ختم ہوئے 8 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن اب تک نتائج کا اعلان باضابطہ طور پہ شروع نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر نجی ٹیلی ویژن چینلز اگرچہ پولنگ اسٹیشن سے حاصل ہونے والی نتائج کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن وہ غیر رسمی اور غیر سرکاری ہیں۔ بعض شہروں سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نتائج اکٹھے کرنے کے لیے جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا وہ کچھ مقامات پر کام نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے نمائندے عاصم علی رانا اور ایم بی سومرو اس وقت الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں، اسلام آباد میں ہیں۔ ان سے ہم ہر گھنٹے کے بلیٹن میں تازہ ترین صورتحال معلوم کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت بات کرتے ہیں عاصم علی رانا سے۔ جی عاصم، تھینک یو سو مچ۔ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ انتخابی نتائج آنے میں کیوں دیر ہو رہی ہے؟ اس ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے آفیشیلز حکام کچھ بتا رہے ہیں؟ اسد جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ابھی تک آفیشیلی کسی بھی بات کو اعلان نہیں کیا گیا کہ الیکشن میں اب تک جو نتائج کا اعلان ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا۔ ہماری اس حوالے سے مختلف حکام سے ان سے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت جلد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ جو سب سے پہلے جو یہاں کی ترجمان ہے نگہت، ان سے ہماری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ 10 سے 10:30 بجے کے درمیان پہلے نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن اب رات کا 1 بج چکا ہے، لیکن ابھی تک کسی ایک بھی حلقے کے نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ خاصا انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ پاکستان میں عام طور پر جو انتخابات کے نتائج ہوتے ہیں وہ ان کا آغاز رات کو 8 بجے کے بعد ہو جاتا ہے، اور وہ حلقے جہاں پر بہت کم تعداد میں ووٹ ہوتے ہیں اس جگہ پر ان کے نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بار بہت عجیب انداز میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب تک جو ہے کسی بھی حلقے کا جو سرکاری طور پر کوئی اعلان اعلان نہیں۔ نہیں کیا گیا۔ جو اب تو تک عاصم، آپ یہ بتائیں کہ آپ جی اسد، چونکہ الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہیں، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اس وقت کہاں ہیں اور اس سارے پروسیس کو وہاں کون لیڈ کر رہا ہے؟ کیا کسی نوعیت کا کوئی انٹریکشن میڈیا کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ ہوا ہے؟ جی بالکل، چیف الیکشن کمشنر اب سے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ قبل اسے وہ یہاں پر اچانک وہ یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی عمارت کے اندر ہی موجود تھے، لیکن اسی دوران وہ وہاں پر اپنے آفس سے نکلے ہیں اور اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ کہاں پر گئے ہیں اس حوالے سے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے یہاں پر باقی تمام الیکشن کمیشن کے افسران، ان کے ممبران، وہ یہاں پر اس وقت الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے نہیں دیے گئے کہ انتخابات کے نتائج کیوں تاخیر کا شکار ہے۔ ابھی تک کسی بھی جو حکام ہے سے بات ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا کہ وہاں پر ان کا یہ بھی کہنا تھا، ہمارے جو یہاں پہ ڈائریکٹر ٹیکنیکل تھے، پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے جو ای ایم ایس سسٹم کے، ہماری ان سے اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ای ایم ایس سسٹم صحیح کام کر رہا ہے، لیکن کچھ کیونکہ آج موبائل فون نیٹ ورکس بند ہیں، اس وجہ سے جو وہاں فارم 45 جو وہاں پر سب سے پہلے کسی بھی پریزائڈنگ آفیسر نے پولنگ سے جو ہے وہاں پر آر او تک پہنچانا ہوتا ہے، وہ نہیں پہنچ پا رہا۔ پاکستان میں رات کو 8 بجے وزارت داخلہ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ملک میں جزوی طور پر سروس بحال ہوئی صحیح۔ ہے اور اس کے بعد مکمل طور پر کچھ دیر میں بحال کر دی جائے گی، لیکن ابھی تک یہ سروس بحال نہیں ہو سکی۔ عاصم، اگرچہ یہ انٹرنیٹ سروس بحال نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہیں، آپ کی ایکسیس ہوگی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس انتخابی عمل کے اندر نتائج آنے میں تاخیر پہ پاکستان کے اندر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین اس حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں یا اس پہ سوالات سوشل میڈیا کی سطح پہ اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں پر اب جو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو سیکرٹری جنرل ہے عمر ایوب خان، انہوں نے 2/3 اکثریت حاصل ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ ان کا ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے وہ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے 2 کے ساتھ آئندہ حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے ان کی طرف سے ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری جو ہے نئے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی ایک سوشل میڈیا پر اپنا ایک ٹویٹ کیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو انتخابی نتائج کی تاخیر سے آنے پر تشویش ہے، لیکن انہوں نے جو سندھ میں جو اب تک ان کی جماعت کی طرف سے جو رزلٹ
सामने आ रहे हैं, जो निजी चैनल्स के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वहां पर अपने जो ज्यादातर जो उनकी अपनी सीट्स हैं वो हासिल करने में कामयाब रही हैं। तो इस वजह से उस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इस हवाले से वो तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। लेकिन इस बात पर उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया कि इंतखाबी नताइज जो है वो बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार है। बाकी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जी नून के हवाले से अभी जो बाज मुतजाद इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर अभी उनके ऑफिस में वहाँ पर जो कायदीन है वो मौजूद नहीं है और वो अपने मॉडल टाउन से वो प्राइवेट रवाना हो चुकी हैं। आसिम, ये बताइएगा कि आपके सामने 2018 का भी इलेक्शन है। ये मैंने बात इससे पहले एमबी सोमरो से भी पूछी थी। 2018 के इलेक्शन और उस इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली असम्बली पे पूरे 5 साल सवालात रहे, क्योंकि इलेक्शन के नताइज की रात आरटीएस सिस्टम बैठ गया था, और वो जो क्यास आराइयाँ और शक्को शुबात जो उस रात जन्म लिए थे, वो उनका साया उस असम्बली की पूरी टेन्योर पे रहा। सो अब अगर ये डिले हो रहा है तो इस बारे में भी कुछ खदशात हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी मुतासर हो सकती है, साख मुतासर हो सकती है। जी आसिम। जी बिल्कुल, इस वक्त जो यहाँ पर जो इंतखाबात के नतीजे जो है बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार हो रहे हैं, तो बिल्कुल ये इससे इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो सवाल उठ सकता है। अगरचे आज दिन भर जो है वो मुल्क भर में जो इंतखाबात हुए उसमें वायलेंस जो था वो वहाँ पर नजर नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत पुरसकून इलेक्शन रहे, बहुत कम बात वहाँ पर देखने में आए। जो यहाँ पर शिकायत थी वो भी बहुत कम थी, लेकिन अब जो नताइज है वो बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार नजर आ रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में भी यही हुआ था कि रात 11 बजे के बाद जब आरटीएस सिस्टम बैठा तो उसके बाद हमेशा जब भी इंतखाबात के वाले से बात होती थी तो आरटीएस का ही कहा जाता था। लेकिन आज रात ठीक का और अभी तक एक भी सरकारी सतह पर कोई भी इंतखाबी नतीजा नहीं आया, ठीक। तो इसके नतीजे में जो असेंबली बनेगी लाजमी तौर पर उस पर भी सवाल उठेगा। जी आसिम, एक और बात। जैसे आपने खुद कहा, फॉर्म 45 का आपने हवाला दिया, अगर ऑफिशियल सोर्सेज पे वो कंपाइल होके हमारे सामने नहीं आ रहा, आपके सामने नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहा, वो एक बात, लेकिन जो सिस्टम में चीज़ नज़र आती है कि सियासी जमातों तक वो फॉर्म 45 उनके पोलिंग एजेंट्स पहुंचा देते हैं। शायद यही वजह है कि जो आपने दावों की बात की, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, पीटीआई के रहनुमा की जानिब से, और साथ साथ मैं कुछ देर पहले मीडिया पे देख रहा था कि एमक्यूएम के रहनुमा वो भी ये क्लेम कर रहे थे कि हम अपनी बहुत सारी सीटें वापस लेने में कामयाब हो गए हैं। सो अगर इलेक्शन कमीशन नताइज नहीं अनाउंस करेगा और सियासी जमातें अपने जराए से खुद को हासिल होने वाली मालूमात या फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर दावे करेंगे, और नताइज अगर उसके बरक्स आ गए, तो आमतौर पे तो इलेक्शन का मतलब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लाना है इन हालात के अंदर, तो फिर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। माहिरीन इस बारे में क्या कह रहे हैं? बिल्कुल असद, आपने दुरुस्त बात कही कि यहाँ पर अगर इसी तरीके जो वहाँ पर नताइज होते रहे, वहाँ पर उनका ऐलान हो जैसे अभी जो पाकिस्तान के निजी मीडिया पर आ रहे हैं, लेकिन उनमें से दिलचस्प बात यह है कि बाज जो नताइज हैं वो सिर्फ 5 से 10% जो नताइज वसूल हुए हैं। चंद पोलिंग स्टेशन की जो नताइज हैं उनकी बुनियाद पर जो है वो उनका आगे और पीछे का कह के उनका अनाउंस किया जा रहा है। ये एक खासी मुश्किल सूरत हाल होगी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी। क्यों? अगर उसके बाद जो दूर दराज के हल्के हैं, जो दूर दराज के पोलिंग स्टेशन हैं, वहां पर से आने वाले नताइज मुख्तलिफ हों और एक उम्मीदवार जो अभी वहां नजर आ रहा है और वो पीछे चला जाए और दूसरा उम्मीदवार आगे आ जाए, तो ये बहुत सारे दावे शुरू हो जाएंगे कि वो वहां पर वो तो जीत रहे थे, वो लिवाया गया, रात गए जब इलेक्शन के नताइज नहीं आए तो उनको हरवाया गया। ये इस तरह की बातें जो है वो शुरू हो जाएगी। इससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जो यहाँ पे माहिरीन है हमारा, उनका वो भी इस बात पर तशवीश का शिकार है कि जी उनका कहना है कि ये इलेक्शन जितनी ज्यादा ताखीर का शिकार होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्शन कमीशन की साख पर सवालात उठेंगे। आसिम, आप खुद प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स के साथ आपने काम किया है, उनके इलेक्शन सेल्स के साथ काम किया है। अब उनकी एक बड़ी एक्सपर्टी होगी है, पिछले कम से कम 5 कंसेक्टिव इलेक्शन जो हैं वो कवर करते आ रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स। मुझे ये बताएं कि हम ऑफ कोर्स उनको हवाला नहीं बता सकते, हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त निजी टेलीविजन चैनल्स के ऊपर नताए जा रहे हैं वो गैर हतमी हैं और वो गैर सरकारी हैं, और नतीजा बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हो सकता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस करे। लेकिन ये जो बहुत छोटे से सैंपल के ऊपर, यानी कहीं पे 5% है पोल्स के रिजल्ट, कहीं पे 2%, कहीं पे 10, और बाज़ जगहों पे 30% के करीब हैं, तो ये जो इब्तदाई नताइज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्या ये उस इम्प्रेशन से मुख्तलिफ हैं जो पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा था, या जिस रेफरेंस से ये कहा जा रहा था कि रिजल्ट्स जो है वो पहले से तय हो सकते हैं, इलेक्शन के अंदर मदाखलत हो सकती है? सो ये कुछ मुख्तलिफ इंडिकेटर्स आ रहे हैं, क्या असेसमेंट है?
इससे सरप्राइज किया है कोई? जी जी बिल्कुल सर, काफी जो है ये नताइज जो है वो अब तक सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा कंट्रोल इलेक्शन है, बाद सियासी जमातों की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और उनको इलेक्शन इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान भी ना मिल सका। लेकिन इस वक्त जो उम्मीदवार है वो एक बहुत बड़ी तादाद में अभी तक जो नताइज सामने आए हैं निजी टीवी चैनल्स के मुताबिक, उनमें वो काफी आगे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूं तो खैबर पख्तूनख्वा का जो बहुत बड़ा रीजन है वहां पर वो बहुत ज्यादा जी। तादाद में वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और बस्ती पंजाब के जो इलाके हैं वहां पर ये आजाद उम्मीदवार ज्यादा जीतते नजर आ रहे हैं। तो जो मैं कहूंगा कि ठीक है, सरप्राइजेस वाली बात है बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रही है कि बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। सरप्राइज थैंक यू नताइज आसिम। जो है सामने में है। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। अगले उस एक खबर की जानिब चलते हैं। अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जमान वेदांत पटेल ने महकमा खारजा की मामूल की ब्रीफिंग दी है और पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से बाद सवालात के जवाब दिए हैं। हमारी नुमाइंदा इरम अब्बासी वहाँ पे मौजूद थी और उनसे जानते हैं कि महकमा खारजा के तर्जमान ने पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत के बारे में जो सवालात उठाए गए उनको कैसे रिस्पॉन्ड किया। मैं इस वक्त यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले हफ्तावार ब्रीफिंग हुई। मिस्टर पटेल जो कि डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, उनसे मेरे समेत बहुत सारे सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के इलेक्शन में जो रिगिंग के एलिगेशन सामने आ रहे हैं, वायलेंस जो सामने आ रही है, उस पर सवालात किए। मिस्टर पटेल का ये कहना था कि वो पाकिस्तान में जो पोलिंग डे पे तशद्दुद हुआ, उससे पहले जो तशद्दुद हुआ, उस पर अमेरिका को तशवीश है। अमेरिका को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो कदगने लग रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस पर भी अमेरिका को तशवीश है। सेल फोन की बंदिश, इंटरनेट की बंदिश, उस पर भी उन्होंने कहा कि ये तशवीशनाक है। उन्होंने अमेरिका का मौक़िफ़ दोहराया कि अमेरिका चाहता है कि सारे सियासी फरीक जो है वो पार्टिसिपेट करें, सबको इक्वल राइट्स हासिल होने चाहिए, असेंबली का राइट होना चाहिए, लोगों को पुरअमन एहतजाज या पुरअमन इज्तिमा करने की इजाज़त होनी चाहिए। उनसे जब ये सवाल किया गया कि ऑलरेडी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि फ़ौज जो है वो सड़कों पर है और लोगों को डर है कि शायद इंतखाबात के नताइज को बदला जाए, तो उन्होंने कहा कि वो इंतखाबात के नताइज आने तक इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका इंतखाबात पर, पाकिस्तान में इंतखाबात पर नज़र रखे हुए है। और मैंने जब उनसे ये पूछा कि क्या ऐसे इंतखाबात जिन पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है रिगिंग के हवाले से, टॉर्चर के हवाले से, वायलेंस के हवाले से, तो क्या अमेरिका इनको कबूल करेगा, तो इस पर मिस्टर पटेल का कहना था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के इंतखाबात पर नज़र रख रहा है। उन्होंने दोबारा दोहराया कि तमाम तर तशद्दुद की अमेरिका मजम्मत करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है अपने बाहमी ताल्लुकात को जारी रखेंगे जो भी नया सेटअप आएगा। मैंने उनसे ये भी पूछा कि एक ही भी यहाँ पर भी थिंक टैंक्स पे पाया जाता है कि शायद अमेरिका जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ बराह रास्त बातचीत में ज़्यादा आसानी महसूस करता है, तो इस तासुर को उन्होंने रद्द किया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो भी हुकूमत बनती है, अमेरिका उस हुकूमत के साथ काम करेगा। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अमेरिका के आला अहदेदार भी पाकिस्तान के इंतखाबात पर अपना रद्द-ए-अमल जल्द देंगे। ये थी इरम अब्बासी जो स्टेट डिपार्टमेंट से हमें अपडेट कर रही थी। हम अमेरिका से रद्द-ए-अमल हो या दुनिया भर से, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में इन इंतखाबात के नताइज वो हमारी तरजीहात हैं कि आप तक लेके आएँ। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। तफसीलात के लिए हमारे वेबसाइट urduvoa.com, उसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया पेजेस और प्लेटफॉर्म उनके ऊपर ज़रूर आइए। हमारे यूट्यूब चैनल को भी हम पॉपुलेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज हो, इंस्टा और ट्विटर, उसके ऊपर भी ज़रूर आइए। अब तक के लिए इतना ही।